Jai Hind everyone. I am your SST teacher and I welcome to all of you in my SST class. Students, today I am going to explain chapter 5, Indian Industries and Crafts. In this chapter we will study specialized crafts, decline of Indian handicrafts, development of modern industries in India. Students, India has a heritage of crafts since the times of Indus Valley civilization. Crafts means making objects and metal works with iron carving, stone carving, basketry, matting, etc. Students, now we will read about specialized crafts. Crafts are an integral part in the life of an Indian. Despite the rapid social and technological changes that are taking place in the Western world, special artists create craft objects and they are considered as luxury items. But in India, like many other developing countries, it is the main source of employment for a vast majority of population next to agriculture. Handicrafts can be defined simply as objects made by the skill of the hand and which carry a part of the creator as well as centuries of evolutionary tradition. बच्चों, हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही कलाकृतियों का समाज में प्रमुख स्थान रहा है और भारत हमेशा से इन चीज़ों का प्रोड्यूसर रहा है। भारत में उच्च कोटि की कलाकारी होती थी, चाहे वो मिट्टी पे कलाकारी हो, चाहे जड़ाऊ जेवर बनाने की। लोगों की डिमांड के हिसाब से यहाँ पे हर प्रकार की हैंडीक्राफ्ट बनाई जाती थी जो कि विश्व प्रसिद्ध थी। एंड इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट the three crafts. There are three main classification of crafts. First is folk crafts, religious crafts, commercial crafts. Students, now we will read about folk crafts. People for their personal use or for a limited client base create folk crafts. Folk embroideries done by the village women folk of India are a good example. There are craftsmen who are specialized in creating textiles or jewelry which meet the criteria set up by a particular group of people, usually a particular caste or community. They have their own distinctive designs and styles. बच्चों, लोक कला ये किसी राज्य विशेष से रिलेटेड होती है। हर स्थान में अलग अलग प्रकार की कलाएं और अलग अलग प्रकार से रत्न या जड़ाऊ जेवर बनाने का कार्य होता है। कहीं पर मीने का काम अच्छा होता है, कहीं पर कुंदन की कलाकारी अच्छी होती है, तो कहीं पर चुंदरी प्रिंट का काम होता है। इस तरह से हर राज्य की एक अलग कला होती है जो वहाँ प्रसिद्ध होती है। इसी को हम लोग लोक कला कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट रिलीजियस क्राफ्ट्स. Religious crafts are developed around the religious centers and themes. These crafts items are connected with religious institutions and relevant ceremonies. Various religious places in India are specialized in particular craft items. For example, Varanasi and Kachipuram in Tamil Nadu specialized in weaving clothes for religious ceremonies, particularly silk materials. Similarly, Puri in Orissa, which is a big pilgrim center, is connected with crafts like Patracharita, a painting on cloth and wood, and stone carving. हो गया। बच्चों, रिलीजियस क्राफ्ट्स किसी धर्म, जाति, संस्था के समारोह विशेष के अनुसार होती हैं। जैसे जिस धर्म में जिस तरह के परिधान को पहना जाता है, उस स्थान पर उस धर्म विशेष के सेरेमनी के हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे बनारस में बनारसी साड़ी और तमिलनाडु में कांचीपुरम साड़ी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
Students, now we will read about commercial crafts. Specialized craftsmen of a particular group who are specialized in a particular skill and who can completely master the craft do commercial crafts. They even have subgroups which work for particular groups, and their tools and techniques may vary. The weavers, the dyers, the printers, the goldsmiths and the carpenters are some of the commercial craftsmen. बच्चों, कमर्शियल क्राफ्ट्स में किसी एक ग्रुप विशेष के लोग अपनी वंशानुगत आधार पर उनके यहाँ जो कार्य किया जा रहा है उसको करने में वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं और वो सालों सालों तक अपनी इस परंपरा को कायम करते हैं और उसी काम को करते हैं, जैसे कि जुलाहे हो गए, डाई करने वाले हो गए, सुनार हो गए, ये सब कमर्शियल क्राफ्ट्समैन कहलाते हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. The East India Company systematically ruined the Indian handicrafts. Many reasons were responsible for this decline. First is the Industrial Revolution in Europe in the late 18th century hit the Indian industries very hard. Since Indian goods were made by hand, they were expensive. Therefore, they could not compete with the machine-made products from Britain, which were cheaper due to the large scale production. बच्चों, 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद उन सभी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई, जिससे कि भारतीय माल विदेशों के मशीनों के द्वारा बने माल से कंपैरिजन में खरा नहीं उतर पाया, जिसके कारण कि भारतीय उद्योगों का ह्रास होने लगा. सेकेंड इज द ब्रिटिश फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड डिफरेंट थिंग्स इन एबंडेंस दैट हैड बेटर क्वालिटी ऑफ साइन एंड डिज़ाइन देन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स. बच्चों, जो विदेशी फैक्ट्री में माल तैयार किया जा रहा था वो भारतीयों की बनाए गए माल की तुलना में अच्छा होता था, सस्ता भी होता था और शाइनी भी होता था. इस कारण भी भारतीय व्यापार नीचे की तरफ जाने लगा. थर्ड इज नो ड्यूटी वॉज चार्ज ऑन ब्रिटिश गुड्स कमिंग इनटू इंडिया. ऑन द अदर हैंड, टू डिस्करेज इंडियन एक्सपोर्ट्स. बच्चों, जो ब्रिटिशर्स के सामान अमेरिका से इंडिया में आ रहे थे उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा था, ड्यूटी टैक्स नहीं लगा था, बल्कि जो इंडिया से वहाँ जाने वाले सामान थे उस पर हाई ड्यूटी चार्ज लगा हुआ था, जिसके कारण भी भारतीय उद्योगों का ह्रास होने लगा. द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेड इंडिया into an exporter of raw materials and an importer of finished goods. भारत में रेलवे ट्रांसपोर्ट आदि का विकास होने की वजह से भारतीय कच्चा सामान आसानी से विदेश जाने लगा और वहाँ से बना हुआ सामान भारत में आने लगा, जिसकी भारत में मांग ज़्यादा थी. नेक्स्ट इज द अनेक्सेशन ऑफ द country led to a withdrawal of royal patronage. विदेशियों की दमनकारी नीति के कारण भी बहुत सारे राज्यों का विलय हो गया, जिसके कारण अब इन क्राफ्ट्समैन को किसी भी प्रकार का उनके प्रोफेशन के लिए पेट्रोनेज नहीं मिल पाया, जिसके कारण भी उनके उद्योगों का ह्रास हो गया. नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ द आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन वॉज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ डिक्लाइन. बच्चों, विदेशी सरकार की भारतीय व्यापार के प्रति जो दमनकारी नीति थी ये भी भारतीयों के व्यापार के नीचे की. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. द बिगिनिंग ऑफ द 19th century saw the growth of some Indian industries. Till then, most of the goods had been manufactured by the small scale and cotton industries. बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि भारत में बना हुआ सामान विदेशी माल से कंपेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मशीनों का बना हुआ सामान हाथ के बने हुए सामान की तुलना में सस्ता भी होता था और अट्रैक्टिव भी होता था. अतः भारतीयों ने अपने आप को इंडिया में सेट करने के लिए भारतीय व्यापारियों ने अपनी स्वयं की फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी,
but the British rulers of India did not conceive of India as an industrialized country. लेकिन ये बात ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई कि भारत अपने आप को एक औद्योगिक कंट्री के रूप में साबित कर सके. दे फॉलोड पॉलिसी टू डी इंडस्ट्रियलाइज इंडिया, convert it and preserve it as an agricultural form of industrialized Britain. However, compulsions of maintaining imperial control over the country and its through economic exploitation led Britain to construct roads, railways, posts and telegraph lines, develop ports, irrigation works, banking and insurance facilities. बच्चों, ये सारी सुविधाओं का अंग्रेजों ने अपने व्यापार के विस्तार के लिए भारत में विकास किया, परंतु इसका हमारे इंडियन बिजनेसमैन या इंडियन ट्रेडर्स ने भी बेनिफिट लिया. A significant development was setting up the first ever Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur by Jamshedji Tata in 1907. और जमशेदजी टाटा ने पहली आयरन स्टील कंपनी को सेटअप किया जमशेदपुर में 1907 में. The process of industrialization in India was connected with the consolidation of British colonial rule. और बच्चों, उसके बाद भारत में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई जिससे कि भारत का व्यापारिक रूप ही धीरे धीरे बदलने लगा. उन फैक्ट्रियों में कुछ प्रमुख थी लोहा और इस्पात उद्योग. यह 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया जो अभी भी कार्यरत है. एल्युमिनियम उद्योग की पहली बार 1837 में जयनगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था. इसके अतिरिक्त सीमेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग, शिपिंग उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग इत्यादि ये सारी फैक्ट्रियां भारत में स्टार्ट की गई. द 1850s and 1860s witnessed the growth of plantation industry. और 1850 और 60 में प्लांटेशन इंडस्ट्रीज का भी अभ्युदय हुआ जिसमें मशीन बेस्ड जिसमें थी इंडिगो, टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा. मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वॉज ऑल्सो सेटअप ड्यूरिंग दिस पीरियड. मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई जिसमें मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वर सेटअप इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century and during the beginning of the 12th century of these. जिसमें द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन 1853 इन बॉम्बे and the first jute industry was originally a handicraft of Bengal was set up in 1855. The first jute spinning machine was set up in Bengal and by the end of the 19th century the Indian jute industry became the monopolizer of the world supply of jute. The iron and steel company was started by Jamshedji Tata in 1907. The company started working in 1911 while steel was first produced in 1913. तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे देश में धीरे धीरे बहुत सारी फैक्ट्रियां कार्यरत हो गई एंड इंडियन बिगेन टू डेवलप देयर ओन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो. क्लियर बच्चों?